صدقہ جاریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن وقاص کو کہا کہ اپنی امی کی روح کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کے پانی کا انتظام کر دیجئے، ایک کنویں کا انتظام کر دیجئے، تو صدقہ جاریہ ہر وہ ایسا کام اگر ہم نے انسانوں کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، جب تک بھی وہ چیز جاری اور ساری رہے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیں گے۔ حضرت سعد ابن وقاص نے کنویں کا انتظام کرایا، لوگ کوئی بھی آئے پانی پینے کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کوئی ایسا کام جو دیر تک اور دور تک رہنے والا ہو، اگر وہ کام ہم کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، مسجد کے لیے کوئی چیز عطا کر دی، صف دے دی، نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہے، اسی طرح سے اس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ اور ایک دوسری چیز ہے علمی کلام۔ جس طرح سے ہمارے اکابرین نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں سے جتنے لوگ قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ علمی کلام ہوا۔ اور ایک تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، وہ ہے نیک اولاد۔ اور وہ نیک اولاد اگر اس کی تربیت اچھی کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی اولاد نیکی کرتی ہے، اچھا عمل کرتی ہے، اچھا کام کرتی ہے، تو ثواب بیٹے کو بھی برقرار ملتا رہے گا، لیکن اس ثواب کا اجر اللہ تبارک و تعالی اس کے باپ یا ماں مرحوم کو بھی پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم نے شریعت کو بھی مشکل بنا دیا، اور دوسرا لفظ جو ہم کہتے ہیں کہ آج سماج کے اندر، دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے، وہ مہنگائی سماج اور معاشرے میں کسی اور نے نہیں بنائی، بلکہ جس طرح سے شریعت کو زیادہ یہ اس طرح کی شریعت بہت باری چیز ہے، یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ شریعت نہ جانے کیا ہے، ہم نے اتنا بوجھل شریعت کو بنا دیا اور اتنا مہنگا ہم نے ہر چیز کو کر دیا۔ یہ شریعت یا کسی اور چیز کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ قصور ہمارا ہے۔ آج اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد تعزیت کا معاملہ آتا ہے، انتقال کے بعد نہ جانے کس طرح سے ایصال ثواب کے لیے ہم جتنے بھی سماج میں اور معاشرے میں ایصال ثواب کے نام پر پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد ابن وقاص نے معلوم کیا تو اللہ کے نبی نے جواب دے دیا کہ پانی کا لوگوں کے لیے انتظام کر دو۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی سے معلوم کیا گیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی بھی حدیث سے، قرآن کریم سے کہیں بھی جو آج ہم ایصال ثواب کے نام پر کرتے ہیں کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ معاملہ تعزیت کا آتا ہے۔ تعزیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے، وہ مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کوئی پڑوس کا آدمی صرف مہمان کا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو آج بہت سارے لوگوں کے لیے اور جتنے بھی لوگ جاتے ہیں
उनके लिए चाय का इंतजाम और खाने का इंतजाम, और फिर एहसाल सवाब के नाम पर 10 दिन के बाद और 40 दिन के बाद के मासूम बच्चों के नाम पर हमने मासूम बच्चों को भी बुलाया, साथ में अपने यार और रिश्तेदारों को भी बुलाया, खानदान और ताल्लुक वालों को भी हमने जोड़ा। याद रखिए, अगर आप इसको सवाब समझकर करते हैं, इबादत समझकर अगर आप इस अमल को करते हैं, एहसाल सवाब के लिए अगर आप इस अमल को करते हैं, तो याद रखिए ये इस तरह का मासूम बच्चों का खिलाना आपके लिए जायज नहीं होगा। ये 2 चीजें और 2 हदीस मैंने आपके सामने पेश की। इसी तरह से एक बहुत बड़ा माहौल ये बन चुका है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को कहने वाले कि हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, और एक दूसरे फिरके पर हम कीचड़ उछालते हैं कि वो अपने मरने वालों के बाद 3 भी करते हैं, 10वां भी करते हैं, 40वां भी करते हैं। अगर आपसे मालूम किया जाए क्या हमारे समाज में रहने वाले उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखने वाले, अपने आप को सुन्नी कहने वाले, अपने आप को हनफी कहने वाले, क्या इंतकाल के 40 दिन के बाद मासूम बच्चों के नाम पर हम भी क्या वो हर कुछ नहीं करते जो दूसरे लोग करते हैं? जरा अंदाजा लगाओ, क्या हम नहीं करते? जुमेरात आती है इंतकाल के बाद, क्या उसके लिए हम नहीं करते? हम मदरसों से बच्चों को बुलाते हैं कुरान करीम की तिलावत के लिए। याद रखिए, इस तरह से कुरान खानी इबादत समझ कर करना, एहसाल सवाब पहुंचाना, यह कुरान खानी नहीं है। आप कहोगे कि हमने बहुत सारे बड़े बड़े उलमा को भी देखा कि कुरान खानी का इज्तिमाई तौर पर वो इंतजाम करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत में फरमाया, रब्बना गफिर लना वल इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना। हम जो कहते हैं कि उस मुर्दे के नाम के लिए कुरान पढ़ी और फिर उसका सवाब पहुंचा दिया गया, ये सवाब इस तरह से नहीं पहुंचाते। उसका अंदाज और उसका तरीका ये है, अगर वो करते हैं इसलिए कि आप अगर कोई भी नेक अमल करते हैं, इबादत करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, हम सब का अकीदा ये है कि अगर हम नमाज के बाद दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे। हम कुरान आम तौर से पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के बाद हमारा अकीदा ये है कि कुरान पढ़ने के बाद अगर हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो हाँ, इतना किया जा सकता है कि कुरान पढ़ने के बाद मरहूम के एहसाल सवाब के लिए हम उसकी मगफिरत की दुआ इस अंदाज में मांग सकते हैं, रब्बना गफिर लना वल इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ऐ रब्बा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमारे इन भाइयों की भी मगफिरत फरमा, और जो इससे पहले इस दुनिया से चले गए हैं तमाम ईमान वालों की मगफिरत फरमा दे। असल बात यह है कि वो कुरान खानी का सवाब नहीं पहुंचाते, बल्कि कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, ये कुरान जो हमने पढ़ा है इसकी वजह से तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, और वो दुआ जो हम कर रहे हैं अपने भाई मरहूम की सवाब के लिए उसकी मगफिरत अता कर दे। तो याद रखिए, ये काम जो हम मय्यत के लिए करते हैं, और ताज़ियत में जाने वाले भी जरा गौर से सुने, ताज़ियत में जाने वालों के लिए सिर्फ इतनी इजाजत है कि वहां जाए, उसके कंधे पर हाथ रखे और उसको दुआ दे। वहां इतनी देर भी क़याम न किया जाए कि जिसके घर पे आप जाके बैठे हो वो आपके बैठने की वजह से आपके लिए चाय का इंतजाम भी करा दे। इसलिए कि जब हम बहुत देर तक बैठेंगे तो जिसके यहाँ हम गए हैं उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि कोई दूसरा आदमी हमारे यहाँ आया, कम अज कम उसको एक चाय का कप तो मिल जाए। इसलिए ताज़ियत में जाने वाले भी इसका ख्याल रखें कि हम इतनी ज्यादा देर तक न बैठे कि जिसके घर पे हम गए हुए हैं वो हमारे लिए चाय बनाने के लिए मजबूर हो जाए। उसको दुआ दे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इससे बेहतरीन बदला अता करेगा,
اللہ तबारक व तआला आपको इसका इनाम देंगे और आप सब्र करिए। और फिर तीसरी दुआ उसको दे दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मगफिरत फरमा दे। लेकिन आज हर चीज को हमने मुश्किल बना दिया, ब्याह शादियों को हमने मुश्किल बनाया, बच्चे की पैदाइश को हमने मुश्किल बनाया। जिस वक्त में एक बच्चा जमीन पर आता है, इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है, तो हर वो रस्म हमने इजाद कर दी कि जिनसे न शरीयत का ताल्लुक है न समाज का ताल्लुक है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो शरीयत ने हमें बताया, अजान हमें बताई, तकबीर हमें बताई, तकबीर हमें बताई, उसको गंजा करना, उसके बाल उतरवाना, अकीके की शक्ल को हमने बदल के रख दिया। अकीका क्या था? 7वें दिन सिर्फ बड़ी सादगी के साथ में बाल को मुड़वा देना ताकि उसकी जिस्मानी गंदगी दूर हो जाए, उसके लिए, उसके नस्ल के लिए, उसकी खैर के लिए, उसकी सेहत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अकीके का गोश्त रखा ताकि गुरबा भी उसमें से खा सके, दोस्तों अहबाब भी उसमें से खा सके। लेकिन आज उस बच्चे के अकीके को हमने कितना मुश्किल बना दिया कि हर एक इंसान अकीका भी नहीं कर सकता इस मुश्किल काम की वजह से। इसलिए कि हमारे पास न 2-4 लाख रुपया होंगे और ना हम अकीका करेंगे। अगर हमने सादगी से अकीका किया तो फिर जहन में बात होती है कि समाज क्या कहेगा, ताल्लुक वाले क्या कहेंगे कि हमने तो इन्हें बिरयानी खिलाई, हमने अकीके में इनकी दावत की थी, इन्होंने हमारी दावत क्यों ना की। यही हाल आज मरने के बाद भी है। आज जो हमारा हाल ये हो चुका है कि 3 दिन तक फुला के घर से खाना आए, फुला के घर से खाना आए, फुला के घर से खाना आए। जब उसके यहाँ कोई इंतकाल होता है, हमारा मिजान हो या ना हो, हमारी हैसियत हो या ना हो, चाहे हमें कर्ज लेके करना हो, लेकिन जैसा खाने उसने हमारे मैयत के बाद में खिलवाया था, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उससे कहीं बेहतरीन इंतजाम उसकी मैयत के खाने का करें। तो ये क्या है? ये शरीयत के नाम पर हमने अपने आप को इतना पीछे कर लिया कि हर चीज को हमने मुश्किल बना दिया, हर चीज को हमने अपने लिए मुश्किल बना दिया। और ये जुल्म किसी और ने नहीं, ये जुल्म खुद हमने अपने ऊपर किया है। हम सब कहते भी हैं, हम सब चाहते भी हैं कर ले, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही अल्फाज होता है कि यार अगर मैंने सादगी के साथ अकीका किया, अगर मैंने मैयत के लिए इस तरह का शरीयत के एतबार से अगर कदम बढ़ाया तो समाज क्या कहेगा। याद रखिए, समाज कोई आसमान के ऊपर से आने वाली चीज नहीं है, जमीन के नीचे से आने वाली चीज नहीं है। मैं और आप, हमारे आपस के भाई, यार, रिश्तेदार और ताल्लुक वाले, और फिर आज तो इतना आसान कर दिया गया है कि हमारी यारी और रिश्तेदारियां भी अपनी बिरादरी और अपने लोगों में सिमट कर रह गई है। तो हमारे लिए हर काम करना बड़ा आसान है, हमारे लिए हर काम करना बड़ा आसान है। अगर मैं सादगी से करता हूं तो मेरे पास में आने वाला जो मेरा भाई है, क्या वो सादगी से नहीं करेगा? उसने जब मुझे देखा तो वो भी सादगी के साथ में मैयत का इंतजाम भी कर सकता है, अकीके का इंतजाम भी कर सकता है, शादी का इंतजाम भी कर सकता है। इसलिए समाज कोई और चीज का नाम नहीं है, बल्कि समाज मेरे और आपके बनने से, मिलने से ये समाज बनता है। अगर